और आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर वायरल बुखार और डेंगू के चलते लोग फिर से दहशत महसूस कर रहे हैं। फिरोजाबाद में 60 से ज्यादा लोगों की जान अब तक जा चुकी है। मथुरा में भी वायरल बुखार से 3 लोगों की मौत अब तक हुई है। लखनऊ में 44 से ज्यादा केस अब तक सामने आए हैं और सीएमओ ने ग्राउंड लेवल पर एएनएम को उतारा है। डेंगू को लेकर तमाम जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। तो लखनऊ में 44 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। और फिलहाल आगे बढ़ते हुए आपको एक बार फिर से इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट में लिए चलेंगे। उद्देश्य है सकारात्मक ऊर्जा बनाना और वायुमंडल को बचाना। इंडिया न्यूज का सहयोगी चैनल न्यूज़-X इस क्लाइमेट समिट का ब्रॉडकास्ट पार्टनर भी है। इस वक्त जितेंद्र सिंह कुछ बोल रहे हैं, सीधा सुनेंगे। Declarations that Prime Minister Modi was with regard to the climate concerns of the world, and he also received due acknowledgement for that. And therefore, as I said, in order to reduce emissions, we have to have proactive steps taken in that direction. Our share of renewable energy is also going up each day. It is expected to reach at least 50% by 2050. And our tariff of rupees less than 2 per unit are already one of the lowest values in the world. So on the other one hand, we are confronted with the scenario of a heterogeneous population with its diverse requirements. On the other hand, we are also, because had we been as homogeneous as some of the European nations, maybe the extraneous factors would not have been there. But in spite of that, if we are in a position that we have shown the world the capacity to take a lead, I think that should give confidence and should generate the hope and confidence in us that we can actually do it. But in spite of our renewable energy increasing, the renewable energy renewable electricity can help abatement of only 45 to 50% of the carbon dioxide emissions. And therein comes in the role of hydrogen, clean hydrogen, the relevance of clean hydrogen, why we are talking of clean hydrogen today, why Prime Minister from the ramparts of Red Fort spoke of a hydrogen mission. I think India should be proud. We are one of the first nations in the world to have declared this from the highest platform, that we are into now this hydrogen, green hydrogen as a mission. And therefore, as I said, since the renewable electricity cannot fully abate it, the green hydrogen is the most suited energy vector. And green hydrogen can also be produced by using solar energy to split water in an electrolyzer with oxygen as the only byproduct. The abundance of solar irradiation and also the abundance of water in India is an advantage with us, which implies that green hydrogen can help India to become self-reliant in our energy needs, which would be in keeping with the goal of Atmanirbhar Bharat set by Prime Minister Modi. And at the same time, ensuring our commitment to mitigate climate change and to fulfill our responsibility to the rest of the world as well as the mankind, as I said. If you look at the projections about the potential demand of green hydrogen, by 2030, the figures state that the global annual export potential for green hydrogen is expected to be as much as 10.4 million tons to East Asia and European Union, amounting to nearly 20. दरअसल क्लाइमेट चेंज की वजह से अलग अलग वक्त पर अलग अलग तरह की बातें सामने आती हैं, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होती हैं, बाहरी देशों में भी हो रही हैं, यहाँ पर भी इसी चीज के चलते लोग अवेयर हो सकें, समझ सकें, ये समिट रखा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिद्धार्थ शुक्ला की, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला को आज दोपहर 2 बजे अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। पंचतत्व में उनका जो पार्थिव शरीर है वो विलीन हो जाएगा और अभी अगर देखें तो कूपर अस्पताल में ही उनका शव है। अब से कुछ देर बाद उनका वहां से शव ले जाया जाएगा और उसके बाद उनके घर पर
अंतिम दर्शन किए जाएंगे। उसके बाद तमाम अंतिम दर्शन की प्रक्रिया के बाद, पूजा पाठ के बाद, क्योंकि ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए था उनका परिवार और सिद्धार्थ भी ब्रह्म कुमारी जाया करते थे, इसलिए उनका वहां पर पूजा पाठ होने के बाद वहां पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और फिर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। सिद्धार्थ शुक्ला 40 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है और ये खबर सुनने के बाद हर कोई सदमे में है, हैरान है, परेशान है। मां इस दुख को सहन नहीं कर पा रही है, इकलौता बेटा और बहन जिसका इकलौता भाई अब नहीं रहा। और हमारे साथ इंडिया न्यूज संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, जो जानकारी हम तो पहुंचा रहे हैं। कूपर अस्पताल ले जाया गया था, वहीं पर पोस्टमार्टम हुआ है रात में और अब उसके बाद उन्हें पार्थिव शरीर को घर ले जाया जाएगा, जिसके लिए परिवार पहले से वहां पर मौजूद है। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। श्वेता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि कूपर अस्पताल पर हैं। अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो कि सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर मौजूद हैं। पहले एक बार अपडेट श्वेता से ले लेते हैं। श्वेता, कूपर अस्पताल से क्या अभी तक पार्थिव शरीर उनका ले जाया गया है या फिर अभी भी कूपर अस्पताल में ही है? जी देखिए, कूपर अस्पताल के आसपास अभी के लिए गतिविधियां कम है क्योंकि यहां पर सिद्धार्थ शुक्ला की पार्थिव शरीर ले जाने के लिए उनके परिजन का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन साथ में एक लेटेस्ट डेवलपमेंट आपको बता देना चाहेंगे। जिस तरीके से पीएम रिपोर्ट की हम बात कर रहे थे, ये पूरा कूपर अस्पताल ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब ओशिवारा पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है और इसमें कुछ अहम जानकारी हाथ लगी है, जिसमें यह बताया गया है कि कल 3 डॉक्टर की जो टीम थी, इन्होंने ये पूरा पोस्टमार्टम कैरी आउट किया था और जिसके बाद ये बताया गया है कि सिद्धार्थ शुक्ला का जो विसरा रिपोर्ट है उसे भी सुरक्षित कर लिया गया है और साथ में उसे जो विसरा रिपोर्ट है उसे एफएसएल कलीना में भेज दिया गया है और साथ में पोस्टमार्टम में कुछ अहम बात हाथ लगी है, जिसमें ये बताया गया कि उन्हें किसी भी तरीके की बाहरी चोट या अंदरूनी चोट नहीं थी। ये बात साफ हो चुकी है, लेकिन पीएम रिपोर्ट के जरिए ये बताया गया है कि जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपना पीएम रिपोर्ट अब तक के लिए रिजर्व कर लिया गया है, ओपिनियन के लिए आगे भेजा जाएगा और पुलिस को, ओशिवारा पुलिस को इन्होंने इस वक्त हैंड ओवर कर दिया है। हम इस वक्त ओशिवारा माफ कीजिएगा, हम इस वक्त पोस्टमार्टम सेंटर के बाहर खड़े हैं। इंतजार अब उनके परिवारजनों का है कि कब सिद्धार्थ शुक्ला की पार्थिव शरीर को यहां से उनके घर लेके जाया जाए। जिस बात का बेसब्री से इंतजार हो रहा था वो था पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कुछ नए राज खोलती है, लेकिन इसके ही चलते हमने देखा है कि डॉक्टर जिन्होंने ये पूरा पोस्टमार्टम कैरी आउट किया था, पूरी जो रिपोर्ट बनी है उस पर यह बताया गया है कि अभी के लिए पूरा ओपिनियन सुरक्षित रखा है, इसे सेकंड ओपिनियन के लिए भेजा जाएगा ताकि पुख्ता रूप में ये पता चले कि आखिर कॉज ऑफ डेथ सिद्धार्थ शुक्ला की क्या थी। और ऐसा लगता है श्वेता, जिस तरीके से पोस्टमार्टम हो रहा है, वीडियोग्राफी हो रही है, सेकंड ओपिनियन लिया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के वक्त पर जो खामियां रह गई थी, लापरवाही रह गई थी, जिनको लेकर बार बार सवाल उठ रहा था, ऐसे में इस वक्त किसी भी तरह से लापरवाही का स्कोप छोड़ना नहीं चाहती है, ना तो पुलिस ना तो डॉक्टर्स। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, इससे पहले तस्वीरें आप दिखा रहे थे, जो बिल्डिंग है, जो सोसाइटी है सिद्धार्थ शुक्ला की, वहां जाने के इंतजाम क्या कुछ हैं? बैरिकेड जगह जगह लगाए गए हैं। कौन कौन अब तक आपके आंखों के सामने पहुंचा है? इससे पहले अर्जुन बिजलानी पहुंचे थे परिवार के साथ। देखिए, बड़े नाम में इस वक्त अर्जुन बिजलानी ही पहुंचे हुए हैं, कुछ और जो कलाकार हैं टीवी के वो भी पहुंचे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो फैशन डिजाइनर हैं, जो जिन्होंने सबसे पहले उनको लॉन्च किया था सिद्धार्थ शुक्ला को, वो भी पहुंचे हुए हैं। उनसे हमने अलग खास बातचीत भी की है, दर्शकों को हम दिखाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन यह साफ तस्वीर देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर किस तरीके से हलचल लगातार बढ़ती जा रही है, उनके जो फैंस की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, मुख्य जो रोड है, ये रोड किस तरीके से भारी भरकम यहाँ पुलिस लगाना पड़ा ताकि यहाँ पर रोड ब्लॉक ना हो। चौतरफा चारों तरफ रोड के दोनों तरफ पब्लिक इतनी हो चुकी है कि उन्हें यहाँ पर काबू करना भारी पड़ रहा है, क्योंकि कोविड का वक्त होने की वजह से ये दिक्कतें सामने आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, तैयारियां पूरी कर चुकी हैं। घर पर जब भी आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेड लगाया गया है। बाउंसर्स की यहाँ टीम तैनात की गई है लगातार, क्योंकि कोई भी ऐसा शख्स अंदर ना जा पाए, इसका बकायदा ध्यान रखा गया है। सोसाइटी के अंदर देखिए, यह पूरा सोसाइटी का जो कंपाउंड है, अब कंपाउंड से दिखाता चाहूँ मैं अंदर ले जाके, ये देखिए कंपाउंड है, अंदर आपको तस्वीर दिखाता हूं कि किस तरीके से यह बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर का जो कंपाउंड है, सीधे यहाँ लाया जाएगा उन्हें। और उसके बाद जो जानकारी है कि 12वें महले पर जहां पर वो रहा करते थे, उस 12वें महले पर ले जाएंगे उन्हें, जहां पर ब्रह्म कुमारी के जो विधि विधान है उसके साथ शांति पाठ किया जाएगा। उसके बाद उनके शरीर को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। तो यह इस वक्त आप देख रही हैं कि यह वही बिल्डिंग
बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग के 12वें महले पर सिद्धार्थ शुक्ला रहा करते थे। हालांकि इसी बिल्डिंग में उनकी मां, उनकी बड़ी बहन, उनके जीजा भी रहा करते हैं। तो यह एक ऐसा जगह है जहां पर अब कभी भी उनके जो पड़ोसी हैं, जो चाहने वाले लोग हैं, वह कभी भी अब अपने लाडले को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर लोगों से मिला करते थे। तमाम ऐसे उन्होंने अच्छे दिन देखे थे। लेकिन यह एक ऐसा लोगों के लिए आज जो लोग आ रहे हैं उनकी आंखें नम हो जा रही। जब हमने कुछ लोगों से बातचीत की तो जरूर इस बात को विश्वास नहीं हो रहा कि 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं रहे। तो आप देख सकते हैं कि अंदर जो पुलिस की भारी भरकम व्यवस्था की गई है, अब वो अंदर जो सोसाइटी के लोग हैं या जो उनके चाहने वाले लोग हैं वह अंदर हैं। तो यह पूरी तैयारी कर जा चुकी है। देखिए, जो जानकारी मुझे मिल रही है, देर इसलिए किया जा रहा है कि तैयारियां यहाँ पूरी हो जाए, ताकि आने के बाद और समय यहाँ ना लगे, जो और जाके उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाए। बहुत अधिक समय अब नहीं लगाना है, उस हिसाब से यहाँ पे तैयारियां करने के लिए वक्त लग रहा है, इसलिए उनके डेड बॉडी को लाने में देरी हो रही है। ठीक है, अभिषेक आप रहिएगा। अभिषेक आप रहिए, फिलहाल आप तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये वही गाड़ी है जिसमें अंतिम सफर पर अब सिद्धार्थ शुक्ला निकलेंगे, क्योंकि कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब पुलिस को सौंप दी गई है। डॉक्टर्स पोस्टमार्टम कर चुके हैं और इसी गाड़ी के जरिए पार्थिव शरीर को घर ले जाया जाएगा। शुक्ला के लिए क्या उनका कब तक ले जाएंगे बॉडी? वो मालूम नहीं सर, कुछ बताया नहीं। वो मालूम क्या कुछ जानकारी आपके पास दी? मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं बस है। आपको सजाने के लिए बोला गया? हाँ सर। और ये लेके एम्बुलेंस कहाँ लेके जाएंगे आप लोग? शमशान जाएंगे हम वहाँ पे इधर देखिए, इस तरह दिखना। लोग, मालूम नहीं सर। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं और इसी गाड़ी पर अब से कुछ ही देर बाद सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर जाया जाएगा। हम हर एक अपडेट आपको बताएंगे, हर एक तस्वीर आपको सबसे पहले दिखाएंगे, लेकिन अभी नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर।